وادی کشمیر کی آزادی کے لیے کوشش، ایک مجاہد کی سنسنی خیز داستان آپ کے لیے پیش خدمت ہے مشن کشمیر۔ گل خان ایکسپلوسیو بنانے کا ماہر تھا، خدا جانے اس نے یہ ٹیکنیکل علم کہاں سے حاصل کیا تھا۔ اس نے سب سے پہلے مجھے یہ بتایا کہ بارود سے دھماکہ کیوں ہوتا ہے، مجھے بتایا کہ ہوا کا دباؤ کیا ہوتا ہے، اور اگر کسی بم میں لوہے کے ٹکڑے، کیل اور شیشے کی کرچیاں نہ بھی ہوں تو وہ جہاں پھٹتا ہے وہاں ہوا کا خلا کیوں پیدا ہوتا ہے، اور دھماکے کے پریشر سے چیزیں اپنی جگہ سے کیوں اڑتی ہیں۔ پھر اس نے مجھے ڈائنامائٹ کے چھوٹے چھوٹے مگر انتہائی طاقتور میگنیٹک بم بنانے سکھائے۔ وہ مجھے صبح صبح اٹھا کر اپنے ساتھ دریا جمنا کے پار کسی تاریخی کھنڈر میں لے جاتا۔ وہاں اس نے ایک خفیہ سرنگ میں ایک کلاس کمانڈوز کی تربیت کے لیے ایکسپلوسیو کا سارا سامان رکھا تھا۔ اس نے مجھے ٹائم بم کی تربیت بھی دی اور یہ بھی سکھایا کہ قلم، کاغذ، ماچس، لائٹر، انگوٹھی، سگریٹ، سگار، رسٹ واچ اور ٹوتھ برش کو انتہائی دھماکے خیز بم میں کیسے تبدیل کیا جاتا ہے۔ بموں کے چھوٹے چھوٹے ماڈل وہ سرنگ کے اندر خفیہ جگہ پر میرے سامنے بناتا اور پھر ان میں تیزاب اور بارود کے ملانے سے چھوٹے چھوٹے دھماکے کر کے دکھاتا۔ سب سے آخر میں اس نے مجھے ایسا بم دکھایا جو انسانی جسم کے اندر جا کر پھٹتا تھا، یہ درد کی گولی جتنا تھا۔ گل خان نے کہا، یہ بم آدمی اگر درد یا کسی بھی درد کی گولی سمجھ کر کھا لے تو انسان کے جسم میں جا کر یہ اپنا عمل شروع کر دیتا ہے۔ آدمی کے معدے میں جو تیزابی مادہ ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ اس بم کی گولی کو گلا کر جب اس کی تہہ میں چھپائے گئے مادے تک پہنچتا ہے تو آدمی کے معدے میں ایک دھماکہ ہوتا ہے اور اس کا پیٹ پھٹ جاتا ہے اور جسم دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ 6 منٹ لگتے ہیں۔ گل خان نے اس قسم کے ٹیبلٹ بم پلاسٹک کے لفافوں میں ایک لڑی کی شکل میں ڈال کر رکھے ہوئے تھے۔ ان کے اوپر درد دور کرنے کی ایک مشہور دوا کا نام بھی چھپا ہوا تھا۔ ان بموں کی تعداد 15 تھی۔ گل خان نے ان 15 ٹیبلٹ بموں کو پیکٹ میں میرے حوالے کرتے ہوئے کہا، ان ٹیبلٹ بموں کو تم نے کمانڈو ایکشن کے دوران خاص موقعوں پر استعمال کرنا ہوگا۔ یہ انڈین فوج کے 15 بڑے بڑے اور خاص افسروں کو ہلاک کرنے کے لیے ہیں، لیکن میں تمہیں ان کے بنانے کی ترکیب اور فارمولا بھی بتائے دیتا ہوں تاکہ اگر ان کے بعد بھی ضرورت پڑے تو تم خود انہیں تیار کر سکو۔ گل خان نے مجھے ٹیبلٹ بم بنانے کا پورا فارمولا سمجھا دیا اور اسے لکھ کر بھی دے دیا۔ یہ فارمولا اس طرح لکھا گیا تھا کہ سوائے میرے اور گل خان کے اور کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا۔ یہ کوڈ ورڈز میں لکھا گیا تھا اور اس میں گرم مسالوں، دار چینی، جائفل، الائچی اور کالی مرچوں کے نام بار بار آتے تھے۔ اگر اسے کوئی دیکھ بھی لیتا تو یہی سمجھتا کہ گوشت کا مزیدار سالن یا بریانی تیار کرنے کا نسخہ ہے۔ گل خان کہنے لگا، اگر کسی ایسے آدمی کو تم یہ ٹیبلٹ بم پانی یا چائے کافی کے ساتھ کھلا دو گے جس کے معدے میں تیزابیت زیادہ ہوگی تو یہ بم 2 منٹ میں بھی پھٹ سکتا ہے۔ مجھے یہ بم دشمن کے سرکردہ آدمیوں کو جہنم میں پہنچانے کے لیے بڑا کارآمد لگا۔ یہ ایک ڈرامائی بم تھا، اس کا کسی کو کوئی ثبوت نہیں مل سکتا تھا۔ میں گل خان کے پاس پورے 1 ہفتے رہا اور وہاں سے جب نکلا تو میں بھی ایکسپلوسیو کا ماہر بن چکا تھا، اور 15 ٹیبلٹ بم جو اسپرو کی گولیوں کی شکل میں پلاسٹک میں لپٹے ہوئے ایک چھوٹی سی پلاسٹک کی ڈبیا میں بند تھے میرے پاس تھے۔ میں نے اس ٹیبلٹ بم بنانے کا نسخہ بھی ساتھ رکھ دیا تھا۔ یہ چھوٹی سی گول ڈبیا میں نے پلاسٹک کے لفافے میں ڈال کر اپنے پیٹ کے ساتھ باندھ لی تھی تاکہ محفوظ رہے۔ اب گل خان نے مجھے ایک ایسے کشمیری مجاہد کا اصلی نام اور پتہ زبانی یاد کرایا جو جموں شہر میں رہتا تھا۔ گل خان نے اس مجاہد کا نام لے کر کہا، تم اسے جا کر رپورٹ کرو گے، وہ تم سے کوڈ ورڈ میں ایک سوال کرے گا، تم کوڈ ورڈ میں اس کو جواب دو گے۔ گل خان نے مجھے یہ کوڈ ورڈ والا جواب بھی اچھی طرح سے ذہن نشین کرا دیا۔ اس مجاہد کا حلیہ بھی بتا دیا۔ دلی میں گل خان کے پاس یہ میری آخری رات تھی۔ صبح مجھے ریلوے اسٹیشن سے ٹرین میں بیٹھ کر جالندھر روانہ ہونا تھا، جہاں سے مجھے جموں کے لیے دوسری گاڑی پکڑنی تھی۔ گل خان کہنے لگا، جالندھر میں حالات آج کل حکومت کے سخت خلاف ہیں، خالصتان کی تحریک زوروں پر ہے، اگر وہاں صورتحال بدلتی نظر آئی تو ٹرین کا انتظار نہ کرنا، کسی دوسری لاری میں بیٹھ کر جموں پہنچ جانا، اگر پکڑے جاؤ تو سب سے پہلے میدے میں جا کر پھٹنے والے ان ٹیبلٹ بموں کو ضائع کر دینا، کیونکہ اگر یہ دشمن کے ہاتھ آ گئے تو اس بات کا امکان ہے کہ اس انتہائی قیمتی اور کشمیر کی کمانڈو جنگ میں کام آنے والے بم کا راز فاش ہو جائے۔ یہ بات کشمیری مجاہدین کی تحریک آزادی کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اس سے زیادہ میں تجھے کچھ نہیں بتانا چاہتا کہ یہ ٹیبلٹ بم کمانڈو لڑائی میں کہاں کہاں استعمال ہو رہے ہیں۔
गुल खान ने सुबह सुबह मुझे उठा दिया, मुझे नाश्ता कराया और कहा, मेरा आदमी बारादरी के खंडर की दूसरी तरफ ट्रक लेकर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वो तुम्हें स्टेशन पर पहुंचा देगा। जो जो सबक मैंने तुम्हें सिखाए हैं उन्हें याद रखना। अब आगे तुम्हें अपनी अकल से काम लेना होगा। अगर पकड़े गए तो अपनी अकल से काम लेकर बताना होगा कि तुम कौन हो और जम्मू क्या करने जा रहे हो। मैं जानता हूँ कि कमांडर कमाल शाह ने तुम्हें बड़े से बड़ा टॉर्चर बर्दाश्त करने की जबरदस्त तरबियत दी है, लेकिन इंडियन पंजाब की सिख पुलिस ने अजियत देने के नए नए तरीके इजाद कर रखे हैं। अगर अजियत बर्दाश्त से बाहर हो जाए तो मर जाना, मगर दुश्मन के आगे मेरा और कमाल शाह का नाम हरगिज न लेना। तुम्हारे अकेले के मर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर तुमने मेरा या कमांडर कमाल शाह का नाम बता दिया तो तहरीक आज़ादी कश्मीर को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचेगा। मैंने गुल खान से कहा, मोहतरम, मैं तो आया ही तहरीक आज़ादी कश्मीर पर जान कुर्बान करने के लिए हूँ। ये कैसे हो सकता है कि मुझे इसका मौका मिले और मैं अपनी जान कुर्बान न करूँ। गुल खान ने मुझे गले से लगाकर मेरी पीठ पर थापड़ा दिया और बोला, अब तुम निकल चलो, अल्लाह हाफिज। उस वक्त पौ फट रही थी। क्वार्टरों पर पिछले पहर का अंधेरा और खामोशी छाई हुई थी। मैं तेज तेज कदमों से क्वार्टरों की आबादी से निकलकर बारादरी के खंडर की तरफ हो गया। रास्ता मेरा जाना पहचाना था। बारादरी की दूसरी तरफ आया तो वहां अंधेरे में कच्ची सड़क के किनारे एक ट्रक खड़ा था। मुझे करीब आता देखकर गुल खान के आदमी ने ट्रक स्टार्ट कर दिया। मैं अगली सीट पर ड्राइवर के साथ बैठ गया और ट्रक दिल्ली शहर की तरफ चल पड़ा। मौसम बड़ा खुशगवार था। ये अक्टूबर के शुरू का मौसम था और रात को खुनकी हो जाती थी। गुल खान ने मुझे नायलॉन की निस्वारी रंग की एक जैकेट पहना दी। उसने कहा था कि जम्मू में सर्दी होगी, ये वहां तुम्हारे काम आएगी। ट्रक ने मुझे दिल्ली के रेलवे स्टेशन के बाहर उतार दिया। जिस ट्रेन में मुझे जालिंधर जाना था वो कलकत्ता की तरफ से आ रही थी। ये बात मुझे गुल खान ने बता दी थी और ताकीद की थी कि चूंकि पंजाब में सिक्योरिटी बड़ी सख्त है और इंटेलिजेंस के आदमी रेलवे स्टेशनों पर अक्सर मंडलाते फिरते हैं, इसलिए वक्त से पहले प्लेटफॉर्म पर मत जाना और कलकत्ता एक्सप्रेस की आखिरी बोगी की किसी डिब्बे में बैठकर कोशिश करना। हो सकता है गुल खान को इस बात का तजुर्बा हो कि इंटेलिजेंस वाले आखिरी डिब्बों की तरफ कम तवज्जो देते हैं। कलकत्ता एक्सप्रेस के आने में अभी 20 मिनट रहते थे। मैं इतनी देर में स्टेशन के बाहर ही एक जगह घास के प्लॉट में बैठा रहा। जब ट्रेन के आने में 6-7 मिनट रह गए तो मैं स्टेशन में आ गया। टिकट मैंने आते ही ले लिया था। मेरी खुशकिस्मती के ट्रेन लेट नहीं थी, ठीक वक्त पर आई। मैं गुल खान की हिदायत के मुताबिक पिछली बोगी की तरफ गया। ट्रेन कलकत्ता से अमृतसर तक चलती थी। उसमें काफी रश था। मैंने ग्रे कलर का हिंदुआना कुर्ता और तंग मोहरी का पजामा और गुल खान की दी हुई नायलॉन की नस्वारी जैकेट पहनी हुई थी। पाँव में बंगलोरी चप्पल थी। मेरे कमर के साथ वो रुमाल बंधा जिसमें प्लास्टिक के लिफाफे में बंद वो छोटी सी डिबिया थी जिसके अंदर इस्प्रो की गोलियों की शक्ल के 15 टैबलेट बम थे। मुझे सबसे ज्यादा उनकी फिक्र थी क्योंकि ये एक कमांडो का बड़ा कीमती सरमाया था। ये 15 टैबलेट बम दुश्मन के 15 कमांडो या जर्नैलों को बर्बाद कर सकते थे। प्लेटफॉर्म में आते वक्त भी मैंने कमांडो की उकाबी निगाहों से लोगों का जायजा लिया था और डिब्बे में बैठने के बाद भी मैंने अंदर बैठे हुए लोगों के चेहरों को खास निगाहों से देखा। मुझे उनमें कोई मुश्तबा शख्स दिखाई न दिया। ये मेरी भूल थी। ये हकीकत है कि आदमी चाहे जितना मुकम्मल हो जाए, कहीं न कहीं उससे गलती जरूर हो जाती है। मुझसे भी गलती हो गई थी। गलती ये थी कि मैंने अपनी कमांडो ट्रेनिंग और फन्नी महारत और चेहरा शनासी की अपनी सलाहियत पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लिया था। असल में एक आदमी उस वक्त से ही मेरे पीछे लग गया जब मैं दिल्ली स्टेशन के सामने वाले प्लॉट में घास पर बैठा था। ये दिल्ली पुलिस के इंटेलिजेंस ब्यूरो का आदमी था। मैंने उसे नहीं देखा था, मगर मैं उसकी निगाहों में था और मेरी बदकिस्मती कि वो मेरे डिब्बे में आकर मेरी सामने वाली सीट पर बैठ गया। जब तक गाड़ी खड़ी रही उस शख्स ने मुझसे कोई बात न की। जब गाड़ी दिल्ली शहर से काफी आगे निकल गई तो उसने मुझसे बातें शुरू कर दी। उसने जेब से सिगरेट की डिब्बियां निकालकर सिगरेट पेश किया। आप सिगरेट पियेंगे? मुझसे ये हिमाकत हो गई कि मेरे मुंह से निकल गया कि मैं सिगरेट नहीं पीता। असल में मुझे सिगरेट की वाकई आदत नहीं थी और उसका नशा भी नहीं था, लेकिन एक तरबियत याफ्ता कमांडो की हैसियत से मुझे याद रखना चाहिए था कि मैं स्टेशन के बाहर प्लॉट में बैठा हुआ था तो सिगरेट पी रहा था। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, मगर आप बाहर प्लॉट में तो सिगरेट पी रहे थे। मेरे जिस्म में सनसनी की एक लहर दौड़ गई। एक सेकंड में मैं समझ गया कि ये इंटेलिजेंस का आदमी है और उस वक्त से मेरी निगरानी कर रहा है जब मैं स्टेशन के बाहर प्लॉट में बैठा था। मैंने हंसकर कहा, बात यह है महाराज के इस वक्त मेरा सिगरेट पीने को जी नहीं चाहता। मैं कभी कभी सिगरेट पीता हूँ। उस शख्स का हुलिया ये था कि उम्र जवानी की हुदूद पार कर रही थी। बालों पर थोड़ा थोड़ा खिजाब लगा हुआ था। सर दरमियान से कुछ गंजा था। बदन भारी था।
मैली सी खाकी रंग की कमीज के ऊपर ठंडा कोट पहना हुआ था, नीचे एक पतलून थी। वो सिगरेट उंगलियों में लेकर हाथ की मुट्ठी बनाकर उसके कश लगा रहा था। दो एक बार वो खांसा तो साथ वाले मुसाफिर ने उसकी तरफ नापसंदीदगी की निगाह से देखा। उस आदमी ने हंसकर कहा, ये लो महाराज, सिगरेट फेंक देते हैं। और उसने सिगरेट सीट पर से जरा उठकर मेरी खिड़की के बाहर फेंक दिया। फिर वो बड़ी खुश अखलाकी के साथ मुझसे बातें करने लगा। भाई जी, आप अमृतसर जा रहे हैं क्या? मैं जानबूझकर खिड़की की इस दौरान मैंने सारी हिकमत अमली जहन में तैयार कर ली थी कि मुझे उसके सवालों के क्या जवाब देने हैं। पहले तो मैंने जाहिर किया कि मैंने उसकी बात नहीं सुनी। जब उसने मेरे घुटने को उंगलियों से जरा हिलाते हुए अपने सवाल को दोहराया तो मैंने गर्दन घुमाकर उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ जी, मुझे अमृतसर जाना है। जालिंदर का वैसे भी मुझे नाम नहीं लेना था। अमृतसर का नाम मैंने इसलिए बोल दिया था कि अगर उसने अमृतसर के बारे में पूछा कि वहाँ कहाँ रहते हो, तो मैं अमृतसर शहर के बाजारों और महल्लों से काफी वाकिफ था, उसके सवाल का जवाब दे सकता था। उसने जब पूछा कि अमृतसर कहाँ रहते हो, तो मैंने बेनियाजी से कहा, सिंहपुरे में रहता हूँ। वो आदमी बड़ा चालाक था, कहने लगा, सिंहपुरे में पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी रहते हैं, क्या तुम भी पाकिस्तान से आए हो? मैंने कह दिया, हाँ जी, मेरे माता पिता का घर लाहौर संत नगर में था। लाहौर में जो हिंदुओं के मोहल्ले थे उन सब का मुझे पता था। मेरे करीब ही एक आदमी ने खुश होकर कहा, महाशय जी, हम भी लाहौर के रहने वाले हैं, हमारा घर शाह आलमी में था। ये अच्छी खासी उम्र का हिंदू था। उसने लाहौर की बातें शुरू कर दी। मैं बड़ा खुश हुआ कि इंटेलिजेंस वाले के सवाल जवाब से जान छूटी। मैंने लाहौर के हिंदुओं के मोहल्लों और वहाँ मुसलमानों के हमलों और मकानों को आग लगाने की फर्जी कहानियां बयान करनी शुरू कर दी। इस दौरान मैं इंटेलिजेंस एजेंट को एक नजर देख लेता। वो मेरी तरफ देखकर इसी तरह मुस्कुरा रहा था जैसे उसे मेरी किसी बात का यकीन ना रहा हो। मैं दूसरे मुसाफिरों से लाहौर शहर की बातें करता रहा और दिल में सोच रहा था कि जालिंदर तक बड़ा लंबा सफर है। इंटेलिजेंस का आदमी तो मेरी जान नहीं छोड़ेगा, इससे किस तरह पीछा छुड़ाया जाए। मैं फुल कमांडो था और कश्मीर के महाज पर दुश्मन की सफों में तबाही मचाने जा रहा था। अगर उस आदमी ने मुझे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जो ये कर सकता है, तो ये मेरे मिशन का बहुत बड़ा नुकसान होगा। मेरी कमर के साथ बंधी हुई स्प्रो की गोलियां यानी टैबलेट बम भी बरामद हो जाएंगे। मैंने अगर कहा कि ये सर दर्द की गोलियां हैं तो पुलिस पूछेगी कि सर दर्द की गोलियों को प्लास्टिक की डिब्बी में बंद करके कमर के साथ बांधने की क्या जरूरत थी। अगर पुलिस की लेबोरेटरी में इन गोलियों का तज्जिया किया गया तो फौरन ये राज खुल जाएगा कि इन गोलियों में धमाका खेज मादा भरा हुआ है। मेरा जहन बड़ी तेजी से काम करने लगा। अब मुझे डर खौफ कोई नहीं था, सिर्फ जहन उलझा सा था कि इस इंटेलिजेंस वाले की वजह से कहीं मेरा सारा मिशन अधूरा न रह जाए। कलकत्ता एक्सप्रेस हवा से बातें करती अपनी मंजिल की तरफ उड़ी जा रही थी। आखिर मैंने यही फैसला कर लिया कि रास्ते में किसी जगह मौका देखकर किसी भी छोटे बड़े स्टेशन पर चाय वगैरह पीने के बहाने उतर जाऊं और वहां से फरार हो जाऊं। जाहिर है अगर ये आदमी मेरे पीछे उतर भी आया तो दौड़ने में मेरा मुकाबला नहीं कर सकेगा। ये सोचकर मुझे कुछ इत्मीनान सा हो गया। अब मैंने ये स्कीम बनाई, जब दिन ढलेगा और शाम का अंधेरा होने लगेगा तब ट्रेन से उतरूंगा। जिस बात से मुझे यकीन हो गया कि ये इंटेलिजेंस का आदमी है और एक खास मकसद लेकर मेरा पीछा कर रहा है, वो बात ये हुई कि उसने मेरा अचानक हाथ पकड़ लिया और अय्यारी से मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मेरा विचार ये कहता है कि आपको पाकिस्तान से आए 2 महीने ही हुए हैं, आपका विचार क्या कहता है? मैं अपने हवास को पूरी तरह संभाले हुए था और बज़ाहिर बड़ी बेनियाजी और एतमाद के साथ बोल रहा था। उस आदमी के इस सवाल पर मैंने किसी कदर बरहम होकर कहा, आप कोई ज्योतिषी हैं? अगर आप ज्योतिषी हैं तो आपको ज्योतिष विद्या का कुछ पता नहीं है। मेरी उम्र इस वक्त 7-8 साल की थी जब मैंने अपने माता पिता के साथ अपना सारा घर बार पाकिस्तान में लुटवा कर अमृतसर आया था। तब से लेकर आज तक मैं कभी पाकिस्तान नहीं गया। वो अय्यार आदमी बराबर मुस्कुराए जा रहा था। कहने लगा, महाराज नाराज क्यों होते हैं? आपका नाम क्या है? मैं कुंदन लाल कहकर खिड़की के बाहर देखने लगा। मेरा शक अब यकीन में बदल गया था। ये आदमी था पंजाबी, हिंदू या दिल्ली की इंटेलिजेंस पुलिस या जालिंदर अमृतसर की इंटेलिजेंस पुलिस का आदमी था। वो मुझसे पंजाबी में ही बात कर रहा था। उसने मेरा हाथ दबाते हुए कहा, बड़ा अच्छा नाम है जी। सैगल जी का भी यही नाम था। वो जालिंदर में रहता था। आप भी कहीं जालिंदर तो नहीं जा रहे? मेरा दिल जरा सा तेज धड़का मगर फौरन ही अपने मामूल पर आ गया। उसने जानबूझकर उस शहर का नाम लिया था जहां मैं जा रहा था, जो शहर उस वक्त मेरा टारगेट था। हो सकता है ये उसकी ब्लफ चाल हो, लेकिन ये उसकी काम कर गई। मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया कि अगले स्टेशन पर किसी न किसी बहाने ट्रेन से उतरकर फरार हो जाऊंगा। एक बार फरार हो गया तो चाहे दिन की रोशनी ही क्यों ना हो, इसका बाप भी मुझे नहीं पकड़ सकेगा। मुसीबत ये थी कि ये एक्सप्रेस ट्रेन थी, स्टेशन पर स्टेशन छोड़ती जा रही थी। मुझे मालूम नहीं था कि अगला बड़ा स्टेशन कौन सा आ रहा है। एक मुसाफिर ने मेरा ये मसला हल कर दिया था। उसने किसी औरत से कहा, अम्मा बस अब मीरठ
मेरठ आया ही समझो। मेरठ एक बड़ा शहर था, उसका स्टेशन भी बड़ा था। यहाँ अगर मैं एक दफा उतर कर रूपोश होने में कामयाब हो गया तो फिर पुलिस के हाथ नहीं आऊंगा। मैं किसी भी तरफ चला जाऊं और कहीं से भी कोई लारी पकड़कर किसी दूसरे शहर पहुंच जाऊं। कभी कभी कमांडो मिशन में ऐसा भी हो जाता है कि बिल्कुल नपी तुली दुरुस्त रिपोर्टों की रोशनी में टारगेट तक पहुंचने की स्कीम तैयार की जाती है, मगर कमांडो जब अपने टारगेट पर पहुंचता है तो अक्सर ऐसा भी होता है कि हालात बदल चुके होते हैं और वहां फिर अपनी अक्ल से काम लेकर किसी दूसरी स्कीम पर अमल करना पड़ता है। चुनाचे इस बात का इम्कान भी था कि अगर मैं पकड़ा जाऊं तो फरार होने का मौका न मिल सके। ऐसी सूरत में मुझे सबसे पहले टैबलेट बमों की गोलियों को महफूज करना था। मैं जिस सीट पर बैठा था टॉयलेट उसके साथ ही थी। मैं टॉयलेट में चला गया। अंदर से चटखनी लगाकर मैंने फौरन अपनी कमर के गिर्द बंधा हुआ रुमाल खोला। उसमें प्लास्टिक की जो छोटी सी डिब्बी बंधी हुई थी उसे खोलकर उसमें से टैबलेट बम की टिक्कियों का फीता जो मैंने तह करके रखा हुआ था निकाल कर जेब में डाल लिया। डिब्बी और रुमाल वहीं टॉयलेट में से नीचे लाइनों में फेंक दिया। अब किसी को इन गोलियों के फीते से शक नहीं पड़ सकता था। कोई भी उसे देखकर यही समझता कि ये स्प्रो की गोलियां हैं। ट्रेन की रफ्तार हल्की हो गई थी। मेरठ का स्टेशन आ रहा था। मैं टॉयलेट से निकलकर अपनी सीट पर आकर बैठ गया। इंटेलिजेंस एजेंट झुककर मेरी वाली खिड़की में से बाहर देख रहा था। गाड़ी प्लेटफॉर्म में दाखिल हो गई थी। मैं समझ गया था कि वो बाहर क्यों देख रहा है। वो यकीनन रेलवे पुलिस के सिपाहियों को बुलाना चाहता था। ट्रेन रुकी तो ऐन सामने 2 कांस्टेबल खड़े नजर आए। इंटेलिजेंस एजेंट ने उन्हें इशारा किया और खुद डिब्बे के दरवाजे की तरफ बढ़ा। मेरे पकड़े जाने में अब कोई शुबा नहीं था। पुलिस कांस्टेबल अपने आदमी का मखसूस इशारा पाकर डिब्बे की तरफ बढ़े। मेरे पास फरार होने की कोशिश करने के लिए सिर्फ 3-4 सेकंड थे। अभी इंटेलिजेंस एजेंट डिब्बे के दरवाजे तक नहीं पहुंचा था और कुछ मुसाफिर मेरठ के स्टेशन पर उतरने के लिए उठ खड़े हुए थे। मैंने उनकी आड़ ली और डिब्बे की दूसरी तरफ वाली खिड़की में से बाहर कूद गया। ये काम इतना आसान नहीं था जितनी आसानी से मैंने बयान कर दिया। कोई आम आदमी ये नहीं कर सकता था, मगर मुझे इसकी ट्रेनिंग दी गई थी और ये मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। दूसरी तरफ रेल की एक और पटड़ी थी और उसके आगे दूसरा प्लेटफॉर्म था। मैंने तेजी से लाइन उबूर की और उछलकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर चढ़ गया और तेज तेज कदमों से सामने वाले गेट की तरफ बढ़ा। इसी दौरान पीछे से कांस्टेबल ने सीटियां बजानी शुरू कर दी, मगर मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर न देखा। दूसरे प्लेटफॉर्म पर चूंकि कोई गाड़ी नहीं थी इसलिए गेट खाली था। मैं तेज तेज कदम उठाता गेट से निकल गया। सामने सड़क थी, एक तरफ रिक्शे वगैरह खड़े थे। मैंने जो पहला खाली रिक्शा देखा उसमें बैठकर रिक्शे वाले से कहा चलो। उसने पूछा किधर जाना है बाबूजी? मैंने कहा तुम चलो अभी बताता हूँ। ये मोटर रिक्शा था। दिन के 10 बजे का वक्त होगा। बाजार खुले थे, बड़ी रौनक थी, ट्रैफिक भी काफी थी। मैंने पिछली खिड़की का पर्दा पीछे हटाकर देखा। दूसरे रिक्शे और गाड़ियां और तांगे वगैरह आ रहे थे। इनमें पुलिस की कोई गाड़ी नहीं थी, लेकिन ऐसा हो सकता था कि खुफिया पुलिस का आदमी किसी दूसरे रिक्शे का ताकुब कर रहा हो। उस जमाने में अभी मोबाइल टेलीफोन का रिवाज नहीं था। खुफिया यूनिट इतनी जल्दी पुलिस को अलर्ट नहीं कर सकता था। अगर उसने मुझे स्टेशन से रिक्शे में जाते हुए देख लिया था तो मुमकिन था कि वो किसी दूसरे रिक्शे में मेरा पीछा कर रहा हो, लेकिन इसका इम्कान बहुत कम था। इंडिया में जब कमांडो के साथ ऐसी सूरत हाल पेश आती है तो कुदरती तौर पर उसके वहाँ के किसी मुसलमान का या मस्जिद का ही ख्याल आता है, क्योंकि इंडिया में मुसलमान करोड़ों की तादाद में आबाद हैं। अगरचे वो हिंदुओं की गुलामी में जिंदगी बसर कर रहे हैं, फिर इस्लाम का मजबूत रिश्ता हर मुसलमान को एक दूसरे से करीब कर देता है। लेकिन कमाल शाह ने मुझे ये नसीहत भी कर दी थी कि अगर कभी ऐसी सूरत हाल पेश आ जाए तो सोच समझ कर किसी मेहमान के यहाँ पनाह लेना। अगर पनाह भी लेनी पड़ जाए तो उसे अपने बारे में हरगिज न बताना कि तुम कौन हो और किस मिशन पर कहाँ जा रहे हो। अपने आप को पाकिस्तानी भी जाहिर न करना और पाकिस्तान के बारे में ज्यादा बातें न करना। मेरे मोहतरम उस्ताद और मर्द मोमिन कमाल शाह ने मुझे ये भी बता दिया था कि इंडिया की पुलिस चाहे कैसी भी हो मगर उसकी खुफिया पुलिस बड़ी चाको चौबंद है, उससे गाफिल न होना। चुनाचे मैंने ये सोच लिया था कि इंटेलिजेंस एजेंट मेरे ताक़ुब में है। रिक्शा एक चौक में पहुंचा तो ड्राइवर ने मुझसे पूछा कि आपको जाना कहाँ है बाबू? मैंने कहा बाएं तरफ वाले बाजार में चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ। रिक्शा बाएं तरफ वाले बाजार की तरफ घूम गया। ये बाजार रौनक वाला नहीं था। ये जमाना 65 की इंडिया पाकिस्तान जंग से 1 साल पहले का जमाना था और अभी शहरों की आबादी इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी थी। कश्मीर के महाज पर हुर्रियत परस्त कश्मीरी अपनी आजादी और अपनी बका के लिए बराबर लड़ रहे थे। इसी जंग से तंग आकर इंडिया ने अगस्त 1965 में आजाद कश्मीर पर हमला कर दिया था। वो अपनी फौजी ताकत के बलबूते पर आजाद कश्मीर को हड़प कर लेना चाहता था ताकि पूरे कश्मीर पर उसका नाजायज कब्जा हो जाए, मगर ये सौदा उसे बड़ा महंगा पड़ा। जब आजाद कश्मीर पर उसने अटैक किया और अपनी भारी नफरी
और अमेरिका और रूस से लिए हुए बेपनाह असलहे के जोम में उसने पाकिस्तान की सरहद पर गोलाबारी शुरू कर दी और उसकी तोपों के गोले पाकिस्तान के देहात आवान शरीफ में गिरे तो पाकिस्तानी फौज मैदान में आ गई। उसके बाद इंडिया को जिस इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा और जिस कदर जिल्लत आमेज हजीमत उठानी पड़ी वो सारी दुनिया को मालूम है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।